जय परम गुरुपाद, जय प्रभुपाद, जय जगद्गुरु शिशिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, जय गुरु परंपरा भागवत परंपरा हरिनाम संकीर्तन। गौर भक्तविंद की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মর গুণ। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মর গুণ। গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে লইনু শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ মম নিবেদন শুনা, মম নিবেদন শুনা। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মোর গুণ। গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার চরণে লইনু শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে। না জানি ভকতি কর্মে জড় মতি, না জানি ভকতি কর্মে জড় মতি। পড়েছি সংসার ঘোরে, পড়েছি সংসার ঘোরে। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া, গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া। নাই মম বল জ্ঞান সুনির্মল, নাই মম বল জ্ঞান সুনির্মল। স্বাধীন নহে কায়া, স্বাধীন নহে কায়া। গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান, গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান। মাগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া, মাগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া। করহে করুণা দান, করহে করুণা দান। গোপীনাথ তুমি তো সকলি পর, গোপীনাথ তুমি তো সকলি পর।
দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, কে আছে পাপীর আর, কে আছে পাপীর আর। গোপীনাথ তুমি কৃপা পারা বার, গোপীনাথ তুমি কৃপা পারা বার, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কইলে সুবিস্তার, লীলা কইলে সুবিস্তার। গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী, গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী, অসুর সকল পাইল চরণ, অসুর সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিল বসি, বিনোদ থাকিল বসি। রাধা গোপীনাথ, রাধা গোপীনাথ, গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ। ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ। প্রভু কৃপা कर, प्रभु कृपा कर, कृपा कर प्रभु कृपा कर। मोर प्रभु मदन गोपाल, गोविंद गोपीनाथ, मोर प्रभु मदन गोपाल, गोविंद गोपीनाथ। दया कर मुयाद मेरे, दया कर मुयाद मेरे, संसार सागर माझे पड़िया रहियाछि ना, संसार सागर माझे पड़िया रहियाछि ना, कृपा डोरे बांधिला मोरे, कृपा डोरे बांधिला मोरे, मोर प्रभु मदन गोपाल, गोविंद गोपीनाथ, मोर प्रभु मदन गोपाल, गोविंद गोपीनाथ। अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी, अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে, এবার ভরসা মনে লইয়া ফেল বৃন্দাবনে, এবার ভরসা মনে লইয়া ফেল বৃন্দাবনে, বংশী বট
যেন দেখি সুখে বংশী বট, যেন দেখি সুখে মোর প্রভু মদন গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ। দয়া করা মুইয়াদ মেরে, দয়া কর মুইয়াদ মেরে, কৃপা করয়া গুরি লামরে কেসে ধরি, কৃপা করয়া গুরি লামরে কেসে ধরি, শ্রী যমুনা দেহ পদ ছায়া, শ্রী যমুনা দেহ পদ ছায়া, অনেক দিনের আস নহে যেন নৈরাস, অনেক দিনের আস নহে যেন নৈরাস। দয়া কর না কর মায়া, দয়া কর না কর মায়া, মোর প্রভু মদন গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ। দয়া কর মুইয়াদ মেরে, সংসার সাগর মাঝে পড়িয়া রইয়াছি নাথ, সংসার সাগর মাঝে পড়িয়া রইয়াছি নাথ, কৃপা ডোরে বাঁধিলা মোরে, মোর প্রভু মদন গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ। অনিত্য এ দেহ ধরি আপন আপন করি, অনিত্য এ দেহ ধরি আপন আপন করি, আছে পাছে সমনের ভয়, পাছে পাছে সমনের ভয়, নরোত্তম দাস বনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে, নরোত্তম দাস বনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে, পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়, পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়, মোর প্রভু মদন গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ। মোর প্রভু মদন গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ। রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ, রাধা গোবিন্দ দেব রাধা গোবিন্দ দেব রাধা গোবিন্দ দেব রাধা গোবিন্দ দেব, রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন রাধা মদন মোহন।
ঋণাদপি শুনিচেন तररपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार अपने मानवी सदा। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम यतने तहि लवयधिकार। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम यतने तहि लवयधिकार। तृणाधिकाहीन दीना अकिंचनाचार आपने मानवी सदा छरि अहंकार। मृक समखमागुण कर विषधर प्रतिहिंसत जियन्ने कर विपल। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम जतने तहि लयोधिकार। जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दिवे जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दिवे पर उपकारे निज सुख पाशरी पर उपकारे निज सुख पाशरी हईले सर्वगुणे गुणी महाशय हईले सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा साचारी कर अमनिरिद प्रतिष्ठा साचारी कर अमनिरिद कृष्णयधिष्ठान सर्व जीवे जनि सदा कृष्णयधिष्ठान सर्व जीवे जनि सदा कर विसम्मान सवे आदरे सर्वदा कर विसम्मान सवे आदरे सर्वदा दैन्य दयान्ने मान प्रतिष्ठा वर्जन दैन्य दयान्ने मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी होई करह कीर्तन चारि गुणे गुणी होई करह कीर्तन भक्ति विनोद कादी बले प्रभु पाई भक्ति विनोद कादी बले प्रभु पाई अनयधिकार कवे दिवे आमा
श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहार परम जतने तहि लभयोधिकार। जय भक्ति विनाथ ठाकुर भक्ति विनाथ, भक्ति विनाथ ठाकुर भक्ति विनाथ। जय हरि नाम जय हरि नाम, हरि नाम जय हरि नाम। जय हरि नाम जय हरि नाम, जय हरि नाम जय जय हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रमानंदे। जय श्री हरिदास प्रभु की जय, राधा गोविंद देव जी की जय, ऋषि प्रभु की जय। प्रभु जी अभी हरिदास प्रभु जी आए नहीं है, अभी हरिदास प्रभु जी आए नहीं। प्रभु जी आपकी आवाज, आपने माइक बंद कर दिया। है आ गए आगे। ठीक ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिदास प्रभु की जय। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत हम नाम लोग हरिदास प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम लोग चिंता में पड़ गए थे, प्रभु जी हरिदास प्रभु क्यों नहीं आ नहीं रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं प्रभु जी, आप लोगों की कृपा है सब कुछ। अच्छा ठीक है प्रभु, प्रणाम। ठीक है हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। बलि गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामनएति नामिने।
नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवेति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भुदे पादाम्भुजयते नमो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भूमिष्ठ निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः वाञ्छा कल्पतरुः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महम्बोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमो मानं तनति सहो गुगनस्तर्यत् पानीय सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो युगुपिकावरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन शक्रमकभंग कितारिसित सप्ताहमश्च करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्कज भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संक्षेपमानं हरिमात् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का यथा एक दंडक प्रणाम। समागत भक्तवृंद समागत मातृवृंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा एक दंडक प्रणाम। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में हम लोग आज श्रवण करेंगे चतुर्थ अध्यायों का कथा सार जो है। इसी अध्यायों में हम लोग श्रवण करेंगे
ऋषभ देव भगवान का अवतार है और इस संसार में आकर के ऋषभ देव ने जीव कल्याण के लिए कैसे कैसे कर्म किए, किस प्रकार उन्होंने जीवों को उपदेश दिए हैं, ये सारे कथा जो है इसी अध्याय में हम लोग श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जिस समय जन्म हुआ है भगवान ऋषभ देव का आविर्भाव हुआ है, जन्मों से ही भगवान ऋषभ देव के शरीर में जो अलौकिक चिन्ह है, अलौकिक जो लक्षण जो है, इन लक्षणों को देख करके ये ब्राह्मण देवता जो है, सारे प्रजाजन जो है, सभी ने ही मान लिया है ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। भगवान का जिस प्रकार लक्षण है, सारे लक्षण उन बालकों के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तो सभी ने मान लिए है ये भगवान का अवतार, और आगे चल करके सारे प्रजाओं को पालन करेंगे, पोषण करेंगे, धर्मों को रक्षा करेंगे, अधर्मों को विनाश करेंगे। पिता नाभि अपने पुत्रों में जिस प्रकार बल विद्या बुद्धि उनका सौंदर्य जो उन्होंने देखा, संसार में किसी के पास इस प्रकार है ही नहीं। किसके साथ तुलना करे? भगवान के साथ ऐसा कौन हो सकते उनके समान? इसलिए सभी गुणों में श्रेष्ठ है, इसलिए पिता ने नामकरण किया है ऋषभ देव। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। पिता नामकरण किया है ऋषभ देव। एक समय क्या हुआ, देवराज इंद्र अभिमान के कारण एक समय उन्हीं के राज्य में, ऋषभ देव के राज्य में उन्होंने वृष्टि नहीं की। सारे प्रजा अब महाराज जी के पास आए, सारे प्रजा हाहाकार करने लगे। ऋषभ देव समझ गए ये इंद्रों का इस प्रकार काम। इंद्रों ने बारिश नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए? ऋषभ देव ने अपने जो जोग बल जो है, अपने भीतर जो शक्ति है, सामर्थ्य जो है, उसी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अपने देश में, अपने राज्यों में उन्होंने वृष्टि कराया, और जिस वृष्टि के कारण सारे प्रजाओं को सुख हुआ है, आनंद हुआ है। इस प्रकार उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है। देखिए, सबसे पहले जो है ये हमारे भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष का नाम जो पहले अजनाभो वर्ष था। ये ऋषभ देव का जो ज्येष्ठ पुत्र है, उन पुत्रों के नाम के अनुसार ही हमारे देश का नाम, हमारा देश का नाम भारतवर्ष हुआ। अनेक लोग कहते हैं शकुंतला का पुत्रों का भी नाम भी भरत था, पर भागवत में विशेष करके गुरु वर्ग जो है, गुरुदेव कहते थे नहीं है, शकुंतला का पुत्र नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव का ही जो पुत्र है, उन पुत्रों के नाम के अनुसार भारतवर्ष हुआ। भरत महाराज जी के
शासन से पहले देश का नाम था अजनाब वर्ष। इस प्रकार नाभि अपने पुत्रों में अलौकिक गुण देख करके, अलौकिक जो उनका सामर्थ्य जो है ये देख करके अत्यंत आनंदित हुए। क्या कहे, पुत्रों कह करके हे तातो जैसे कोई संबंधन है अत्यंत आदर सूचक, उस आदर सूचक संबंधों को लेकर के पिता अपने पुत्र को बुलाते थे और प्रेम करके, प्रीति करके पिता के मन में आनंद हुआ थे। इस प्रकार ऋषभ देव का स्वभाव जो है ना, स्वभाव को देखकर, उनका आचरण जो है, आचरण को देखकर सारे प्रजाजन ऋषभ देव का अनुगत्य जो है स्वीकार किए हैं, उनमें अत्यंत अनुरक्त थी। इसलिए पिता ने क्या किया, धर्मो रक्षा के लिए, अधर्मो विनाश के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए, दुष्ट जनों को वध करने के लिए पिता ने अपने पुत्रों को रास पद जो है, रास पद पर अभिषेक कर दिया। एकदम धूमधाम के साथ पुत्र को राजा बना दिया और इस पर सारे प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुए। नाभि महाराज जो है, ऋषभ देव का जो पिता जो है, पुत्रों को राज सिंहासन दिला करके, राजगद्दी दिला करके भगवान के भजन करने के लिए एक साथ दोनों पति पत्नी, महाराज नाभि और नाभि महाराज की पत्नी जो है मेरु देवी, दोनों ही मिलकर के भगवान के भजन करने के लिए वो विशाला जो नगर जो है, विशाला स्थान, वो बद्रिकाश्रम जो है, वहां चले गए भगवान के भजन करने के लिए। वहां जाकर के दीर्घ काल तक वह भगवान नर नारायण है, भगवान नर नारायण का आराधना किए, खूब करके कठोर भजन किए और जिन भजन करके, आराधना करके दोनों ने भगवत धाम जो है, भगवत धाम चले गए। देखिए किस प्रकार कठोर तपस्या की। परीक्षित महाराज कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये नाभि महाराज जो है, महात्मा नाभि जो है, उनका आदर्श, उनका आचरण संसार में कौन कर सकते हैं। उनमें जिस प्रकार भक्ति, जिस प्रकार भाव, ये संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जिनके भक्ति में वश होकर भगवान को भी पुत्र रूप में आना पड़ा। देखिए अनेक महात्माओं को, योगी ऋषियों को भगवत प्राप्ति ही नहीं होते हैं और महात्मा नाभि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। और महात्मा नाभि ब्राह्मण के ऊपर अत्यंत जो श्रद्धा प्रेम रखते थे और जिन महात्माओं भी, ब्राह्मणों भी नाभि के ऊपर प्रसन्न होकर के
नाभि महाराज जी के राज्य में हवन कराए किए, यज्ञों किए, और जिन यज्ञों में भगवान को प्रकट करके सबको दर्शन कराया। ऋषभ देव भगवान अवतार होने का एकमात्र कारण है इन संतों महात्मा जन प्रसन्न, उनके प्रसन्नता के लिए उनके जो निवेदन जो है, बस उसी निवेदन में भगवान बस हुए हैं। भगवान दर्शन भी दिए और पुत्र रूप धारण भी किए। तो उनके समान संसार में कौन हो सकता है? सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं। जब पिता माता दोनों चले गए, तब ऋषभ देव भगवान क्या किए देखिए। यद्यपि भगवान को कोई कर्म करने का कोई जरूरत है नहीं, भगवान को कर्म करने का क्या जरूरत है? देखिए, ये ऋषभ देव जो है, उन्होंने क्या किया है? ऋषभ देव विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाकर के रहे, गुरुदेव के पास जाकर के विद्या अध्ययन किए। ये केवल लीला जो है लोक शिक्षा के लिए, गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ आश्रम को शिक्षा देने के लिए। भगवान के परिकर जो है निजजन संसार में इसलिए आते हैं, आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं। किस प्रकार ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है, किस प्रकार गुरुकुल में जाकर के गुरुदेव का सेवा करना पड़ता है, और गुरुदेव के आदेश लेकर फिर संसार में किस प्रकार लौटना पड़ता है, ये सारे जो विद्या जो है, सारे आचरण ऋषभ देव ने सब करके दिखाया। ऋषभ देव जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, शास्त्र में वर्णन है, देखिए, उनको तभी गृहस्थ कहा जाता है जब उनके पास गृहिणी है। गृहिणी के बिना गृहस्थ धर्म शोभा नहीं देते। गृहस्थ माने ही उनके पास गृहिणी है। जब गृहों में प्रवेश किया है, संसार धर्म में प्रवेश किया है, तब देवराज इंद्र प्रसन्न होकर उनका जो कन्या जो है, कन्या को ऋषभ देव को उन्होंने संप्रदान किया, उनको दान किया। और जो कन्या जो है, कन्या की नाम है जयंती। ऋषभ देव जयंती से विवाह किया, और विवाह करने के बाद उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए। देखिए, 100 पुत्रों, इन 100 पुत्रों में अनेक भाग है। देखिए किस प्रकार भाग करते हैं। सबसे बड़े पुत्र जो है वह है भरत महाराज, और जिनके नाम के अनुसार भारतवर्ष देश हुआ। सबसे प्रधान पुत्र जो है, और 100 पुत्रों में 10 पुत्र जो है ना, सबसे प्रधान, सबसे ज्येष्ठ 10 पुत्र जो है,
ये क्षत्रिय बने, राजा बने। ये 10 पुत्रों, जो प्रधान पुत्र भरत महाराज जो है पिता का सिंहासन प्राप्त करते हैं, और 9 पुत्र जो है, 9 पुत्रों के लिए अलग अलग स्थान, अलग अलग खंडों जो है देश प्रदान करते हैं। भागवत में वर्णन है, जेशाम खलु महायोगी भरतो यष्ट श्रेष्ठ गुण आसित। देखिए, उन पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ गुण भरत महाराज जी के पास ही थे, सबसे अधिक। और भरत महाराज जी के नाम के अनुसार वर्षम भारतम इति व्यापोदिशंति, व्यापोदिशंति इति वदंती। अर्थात इदम वर्षम जो है, ये भारतवर्ष जो है उनके नाम के अनुसार कहा जाता है, आज भी चल रहे हैं। और उनके नीचे जो 9 पुत्र जो है ना, 9 पुत्रों के नाम के अनुसार उनका जो देश जो है, उनका देश का नाम भी उसी प्रकार नाम। भागवत में वर्णन है उनके 9 पुत्र के बाद में जो नाम है, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रो, सेन, इंद्र, स्पृक, विदर्भ, कीटक इति नवो नवति प्रधान। देखिए, इति नवो नवति प्रधाना। ये 10 पुत्रों 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। तो 100 पुत्रों में 10 राजा बने, और 9 पुत्र जो है, 9 पुत्र तो जो परमहंसो जो है, महाभागवत जो है, वो मार्ग शिकार की। जिन 9 पुत्रों को नवयोगेंद्रो कहा जाते हैं, और इनके प्रभाव जो है, इनकी महिमा बड़ी अद्भुत है, क्या वर्णन करें। ये 9 पुत्र का नाम है कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्धिय, पिप्पलायन, आबीर, होत्रो, अथो, द्रुमिल, शमश, करभाज। ये 9 पुत्र है, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध्य, पिप्पलायन, आबीर, होत्र, द्रुमिल, चमश, करभाजन। ये 9 पुत्र जो है भागवत धर्मो दर्शना। ये 9 पुत्रों ने मिलकर भागवत धर्म क्या है, परमहंसो मार्ग क्या है, ये सारे धर्मों को विस्तार पूर्वक वर्णन किए ये 9 पुत्र मिलकर। और ये 9 पुत्र ही महाभागवता भगवान के परम भक्त थे। दिन रात केवल भगवान का भजन करते थे, दिन रात भजन में डूबे रहते थे, और जहां चले जाते थे 9 मिलकर एक साथ चलते थे, कहीं पर भी कोई किसी को छोड़ करके नहीं जाते। 9 का जो सिद्धांत जो है, 9 का जो भी तत्व जो है, सबके साथ मिल है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके एक ही मन है। महाराज क्या वर्णन करे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, देखिए, महाभागवता तेषाम भगवत महिमा जो है, इन नवयोगेंद्रों की महिमा जो है, हम आगे जाकर के 11 स्कंदों में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। ये नवयोगेंद्रों की कथा जो है, एक एक योगी, एक एक परमहंस जो है,
निमि महाराज जी के राज सभा में जाकर के विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और वहां जाकर के हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। यह तो केवल नामकरण ही किए हैं। ये ऋषभ देव के पुत्र है, 9 पुत्रों 9 जोगेंद्र। और बाकी कितने रहे 100 पुत्रों में? 10 पुत्र तो राजा बने, 9 पुत्रों 9 जोगेंद्र ऋषि बन गए, और बाकी है 81। और 81 पुत्रों जो है ये कर्मों कांडियों में, शास्त्रों में पारंगत है, और कर्म कांडियों पारंगत होने के कारण ये कर्म कांडीय ब्राह्मण बने। देखिए किस प्रकार कर्म करना है, किस प्रकार हवन यज्ञ करना है। ये सारे कर्मों में परम पारंगत हुए और वेद धर्म, वैदिक धर्म उन्होंने आचरण किए, प्रचारण किए, प्रसार किए। ये 81 पुत्रों ब्राह्मण, कर्मकांडीय ब्राह्मण। देखिए ये सिद्धांत के अनुसार क्या अनुभव हो रहा है। ये 4 वर्णों जो है, ये 4 वर्णों कर्मों के ऊपर, गुण के ऊपर ये सब कुछ ये विचार होते हैं। जिनके भीतर जिस प्रकार गुण है, जो व्यक्ति जिस प्रकार कर्मों कर रहा है, शास्त्रों उन व्यक्तियों को उसी प्रकार कहते हैं। पिता तो एक ही है, माता तो एक ही है, और पुत्रों में भाग हो गए। कोई तो राजा बन गए, कोई तो महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए, और कोई तो ब्राह्मण बन गए। भगवान गीता में स्पष्ट कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टियम। 4 प्रकार वर्णों जो है मैंने सृष्टि की। इसके आधार पर उसके बाद भगवान कहते हैं गुण कर्मो विभाग। गुण जो है, कर्मों जो है, गुण को देख करके, कर्मों को देख करके मैंने ये 4 प्रकार वर्णों को मैंने विभाग। जिन व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार कर्मों करने का वासना है, शास्त्रों उसी व्यक्ति को वही वर्णों कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों का जो लक्षण है, अगर जिनमें है वो ब्राह्मण है। क्षत्रियों का लक्षण युद्ध विग्रह करना, राज्य शासन करना है, जहां पर है वो क्षत्रिय है। वैश्य का लक्षण, वैश्य का गुण, उनका कर्म जिनमें है वो वैश्य जाति है। शूद्रों का गुण जिनमें है वो शूद्र जाति है। ये जाति जो है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, ये तो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ है 4 वर्णों में, ये तो सभी मानते हैं। पर श्रेष्ठ होते हुए भी कभी कभी व्यतिक्रम भी हो जाते हैं। श्रेष्ठ कुल में भी जिस प्रकार नास्तिक है, जिस प्रकार असुर है, वो पैदा हो जाता है। और निम्न कुल में भी, निकृष्ट जाति जो है, उन कुल में भी देखा जाता है भगवान के परम भक्तों, परम सात्विक गुण वाले पुत्र वहां जन्म होते हैं। तो मूल बात यही है, जिनके भीतर जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार कर्म है, तो उन व्यक्ति को वही कहना ही ठीक है। ब्राह्मण का पुत्र वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। एक महात्मा का बेटा एक महात्मा नहीं बन सकता है, अगर उनके भीतर ये गुण ना आए। अगर गुण आए तो ठीक है, तो गुण नहीं आए तो उनको क्या कहेंगे। जिस प्रकार एक पुलिस है, तो पुलिस का बेटा को हम पुलिस नहीं कहेंगे।
हाँ, उन कुल में आए हैं, श्रेष्ठ तो है, सम्मानीय तो है। अगर गुण नहीं है तो गुण नहीं है तो उनको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। इसलिए कि ऋषभ देव के 100 पुत्रों में 3 भाग हुए, राजा बने, महात्मा बने और ब्राह्मण बने। ऋषभ देव अंतिम समय संसारों को दिखाने के लिए, संसारों को शिक्षा देने के लिए, सभी के लिए, सभी प्रजाओं के लिए उन्होंने दिव्य दिव्य उपदेश उन्होंने प्रदान किए। देखिए ऋषभ देव कौन है? ये भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार होने के कारण सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन कहते हैं भागवत में। देखिए इसमें कहते हैं, भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मो तंत्र स्वयं नित्यो निवृत्तिया नर्थो परस्पर केवल आत्मानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्मण्य आभरण मान कालेन अनुगतम धर्मो माचरणेन उपशिक्षन नत्तत् विदाम स्म उपशांतो मैत्र। उसके आगे कहते हैं, कारुणिका धर्मार्थ यश प्रजानंदा मृता वरोधेन गृहेषु लोकं नियमत। अर्थात इन श्लोकों का तात्पर्य जो है, कहते हैं ऋषभ संज्ञ भगवान, हम जिसे ऋषभ देव कहते हैं, इनका स्वरूप क्या है? कहते हैं आत्मोतंत्रो। आत्मतंत्र अर्थात भगवान स्वतंत्र होता है। भगवान किसी का परतंत्र नहीं है। भगवान तो सराट है। जो भगवत वस्तु जो है वो मायापति कहा जाता है। परतंत्र जो है, परतंत्र केवल जीव ही है। सराट जो है, स्वतंत्र जो है, मायापति जो है, वो भगवत वस्तु है, भगवत तत्व है। ऋषभ देव भी आत्मतंत्र, ये स्वतंत्र भगवान है। और केवल, केवल होता है केवल अद्वितीय, एकम एव अद्वितीयम। देखिए श्रुतियों में इस प्रकार मंत्रों मिलते हैं, एकम एव अद्वितीयम। भगवान एक है, भगवान एक छोड़ करके दो कभी भी नहीं। तो भगवान एक है तो भगवान के इतने लीला जो अवतार जो है, तो भगवान का अवतार जो अनेक है, भगवान का लीलाओं अनेक है, पर मूल भगवत तत्व जो है भगवान एक है। लीला विलास करने के लिए, जीव उद्धार के लिए भगवान इस प्रकार कर्म करते, इस प्रकार विग्रह धारण करते हैं। तो मूल तत्व जो है, मूल तत्व भगवान एक है। सर्वेश्वर सर्वात्मा वो भगवान एक, इसलिए कहा है केवल। भगवान एक है, ठीक है। भगवान का स्वरूप क्या है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आनंदानुभव। देखिए आनंद अनुभव भगवान का स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप में आनंदों को छोड़कर दुख जो है, कष्ट जो है, इसका कोई लेश मात्र ही नहीं। भगवान केवल आनंदमय है। भगवान केवल सच्चिदानंदमय है। इसी संसार में अगर किसी को आनंदों को प्राप्त करना है, सुख शांति को प्राप्त करना है, वो केवल भगवान के चरणों में है। भगवान को छोड़कर के इस संसार में, विषयों में
प्रकृतियों में, माया में कहीं पर सुख कह करके कुछ है नहीं है। जो कुछ है ये दुख का परम कारण है। संसार में जो कुछ, भगवान को छोड़ करके संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये हमारा शरीर भी दुख का कारण है। देखिए शरीर को लेकर हम किस प्रकार दुखी हो रहे हैं, बीमार के द्वारा, इसके द्वारा, उनके द्वारा, इसके द्वारा। अगर किसी को सुखी होना है, किसी को आनंद प्राप्त करना है, वो केवल भगवान के पास जाना है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह है। भक्तिनाथ ठाकुर ने इसलिए कहे, अशोक अभय अमृत आधार प्रभु तुम्हार चरणों जय। ताहाते এখন বিশ্রাম লভিয়া আমি সারিনু ভাবেরব। भगवान के चरण अशोक है, अमृत है, और वहां जाकर के शरण ले तो संसार का भाई उनको कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए यह कहा है आनंद अनुभव और नित्य निवृत्य अनर्थ परस्पर। देखिए भगवान जो तत्व जो है नित्यो निवृत्तिया जन्मों मरण आदि, ये अनर्थ जो है, जो कुछ भी दोष है, भगवान को कभी भी स्पर्श नहीं करते। ना तो भगवान का जन्म, ना तो भगवान का मृत्यु। ये दो शब्द जो है ये भगवान के लिए प्रयोज्य नहीं, भगवान में ये नहीं लगना चाहिए। भगवान का आविर्भाव, भगवान का प्राकट्य है, भगवान का तिरोभाव है, भगवान का अंतर्धान है। जन्मों और मृत्यु तो मायाबद्ध जीवों को होता है, पर भगवान का जन्मों और भगवान का मृत्यु जो कुछ संसार में दिखाते हैं, ये केवल असुर मोहन के लिए, नास्तिक लोगों के लिए, पाखंडियों के लिए, उन अधार्मिक के लिए भगवान इस प्रकार लीला करते। उनके सामने भगवान ये दिखाते हैं भगवान मर गए, उनके सामने भगवान इस प्रकार लीला करते हैं उनके जन्मों हुआ है। इसलिए तो गीता में भगवान स्पष्ट कहा है, जन्मो कर्मो चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जन्मों और कर्मों ये क्या है? अलौकिक है। दिव्यम, दिव्यम शब्द का अर्थ अलौकिक, और इन अलौकिक तत्वों को, अलौकिक कर्मों को तत्वों से जो जानते हैं, तत्वों से जानना क्या है? जो वस्तु जैसा है उन वस्तु को वैसा जानना ही तत्व है। भगवान का जिस प्रकार प्राकट्य है, भगवान का जिस प्रकार अंतर्धान है, तत्वों से वास्तव में जो जानते वही तत्व है। अगर कोई तत्वों से कोई जानते हैं, भगवान कहते हैं, फिर दोबारा उनको संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान संसार में प्रकट होते हैं, आविर्भाव होते हैं भक्तों के बीच में, और भगवान का तिरोभाव, भगवान का अंतर्धान, इस समाज में जो कुछ भगवान करते हैं ये सब भगवान का लीला है। और भगवान में क्या गुण है देखिए, इसी श्लोक में भगवान का कैसा कैसा गुण होना चाहिए, तब हम भगवान कह करके हम स्वीकार करेंगे। कहते हैं उपशांता, उपशांत, उप होता है उपसर्ग, शांत। भगवान का विग्रह कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान तो परम शांत विग्रह है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम।
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगम लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योग विधान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान परम शांत है और भगवान को छोड़ करके जितने भी देवी देवताएं हैं सबके स्वरूप में सबके रूप में कोई ना कोई अशांत है, कोई ना कोई राग देश इत्यादि है, पर भगवान में इस प्रकार नहीं है। भगवान परिपूर्ण हो, ये राग देश मत मात्सर्य जो कुछ भी है सबसे भगवान अतीत है, तब तो ही भगवान कहा जाता है, नहीं तो सभी भगवान बन जाते। और भगवान का गुण क्या है, कह रहे हैं सम। भगवान सर्वेषु प्राणीषु समः दृष्टि, किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और भगवान सबके ऊपर समान दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वो भगवान है। अगर भगवान होकर के पक्षपात करे तो भगवान में कोई भगवत्ता नहीं रहती। ये भगवान का गुण है। भगवान का गुण क्या है, क्षमा। और भगवान का गुण क्या होना चाहिए, कारुणिका, परम करुणामय, परम दयालु। भगवान जिस प्रकार दया करते हैं, भगवान जिस प्रकार करुणा करते हैं, सबको, किसी के ऊपर उनका भेदभाव नहीं रखते हैं, करुणा में, उनकी दया में। देखिए संसार में कितने प्रकार जीव है, नास्तिक है, आस्तिक है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जीव है, पर भगवान सभी को पालन कर रहा है, भगवान सभी को प्रसन्न कर रहा है। भगवान की कृपा सबके ऊपर हो रहे हैं, पर भगवत कृपा धारण करने का सबके भीतर वो आधार नहीं। आधार न होने के कारण हम परिपूर्ण रूप में भगवान का कृपा को हम धारण नहीं कर पा रहा, ये तो हमारा दोष है। भगवान का कृपा सबको सुखी करने के लिए, सबको उद्धार करने के लिए भगवान समान रूप में भगवान सबको कृपा करते हैं, तो सारे जीव जो है उन कृपा को धारण नहीं कर पाते। देखिए जब वृष्टि होती है ना, तब आकाश जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबके ऊपर समान के रूप वो वर्षण करते हैं, वो जल दान करते हैं। पर बारिश होने के बाद हम देखते हैं कहीं पर तो जल जमा हुआ है और कहीं पर तो जल उसमें है नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण आकाश का नहीं है, ये कारण तो भूमि का कारण है। जहां ऊंचा भूमि है तो ऊंचा भूमि में कैसे जल जमा हो, उस प्रकार जिन मनुष्य देहों में, मनुष्य में इस प्रकार मान अभिमान काम क्रोध है, सब कुछ अनर्थ भरे हुए है, तो उन मनुष्यों को किस प्रकार भगवत कृपा प्राप्त होंगी। इसलिए भगवान परम कारुणिक है, भगवान परम करुणामय है, भगवान के समान कोई करुणा नहीं कर सकता। और भगवान हमारे लिए परम मित्र है। देखिए ये मित्र जो है ना, मित्रों वो हमारे लिए हमेशा ही हित करते हैं, हमारा कोई अपेक्षा नहीं करते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनके लिए। मित्रों का तो वही है ना, मित्र हम वही उनके कहेंगे जो हमेशा हमारे लिए हित कर रहे, ये मित्र है। तो भगवान भी हमारे लिए हमेशा हित कर रहे, हमारे मंगल के लिए, पर हम इन हित को हम धारण नहीं कर पा रहा है। भगवान स्वयं ईश्वर है, ईश्वर अर्थात मायापति,
जो ईश्वर है, माया नियंता, ये भगवान का गुण है। और भगवान इस संसार में जो कुछ कर्म करते हैं केवल लोक शिक्षा के लिए। देखिए इस संसार में क्या होता है, बीच बीच में ना काल के द्वारा, समय के द्वारा ये धर्म कर्म जो है ना लुप्त हो जाते हैं। हर युगों में कई बार ये धर्म जो है लोप हो जाते हैं, धर्म अंतर्धान हो जाते हैं। तो उस समय अगर भगवान आते हैं, नहीं तो भगवान के परिकर आकर के उन धर्मों को प्रचार करते, उन धर्मों को फिर उन्होंने प्रकाश करते। और भगवान है, भगवान को भी आचरण करना पड़ता है। भगवान का अगर निजजन है, उनको भी आचरण करके जगत जीव को शिक्षा देना पड़ता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो धर्म लुप्त हुए हैं, जो आचरण लुप्त हुए हैं, जीव कल्याण के लिए ऋषभ देव ने उन कर्मों को करने लगे, उन धर्मों को करने लगे जिन धर्मों के जीव के लिए परम हित है। इसलिए जो धर्म नष्ट हुए हैं, उन कर्मों को आचरण करने के लिए ऋषभ देव ने इस प्रकार कर्म किए। क्योंकि अतत विदम उपशिक्षयन, अतत विदम जो अत्यंत मूर्ख लोग जो है ना, अज्ञानी जन जो है, उनको शिक्षा के लिए, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म को आचरण नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ नहीं है, तो वो व्यक्ति कर्म नहीं करेंगे कभी। बड़े लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, छोटे लोग भी उसी प्रकार कर्म करते हैं। इसलिए जो संसार में महत है, उनको महोत कर्म करना पड़ता है। इसलिए गुरु वैष्णव भी इसी प्रकार कर्म करके, आचरण करके जगतवासी को, जगत जीव को शिक्षा देते। और ऋषभ देव भी इसी प्रकार कर्म करके, आचरण करके सभी जीवों को शिक्षा दिए हैं, सभी प्रजाओं को उन्होंने उपदेश दिए हैं, और सभी पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिए हैं आत्म कल्याण का। और आत्म कल्याण का जो उपदेश है, विशेष करके जो ऋषभ देव अपने पुत्रों को, अपने प्रजाओं को देंगे, ये आत्म कल्याण का उपदेश जो है हम आगे श्रवण करेंगे। ऋषभ देव भगवान किस प्रकार आत्म कल्याण का उपदेश दे रहे हैं संसार के लिए। अगर ये उपदेश हम श्रवण करें, ये उपदेश हम धारण करें, तो हमारे लिए परम कल्याण ही कल्याण। इसी से आज समय हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त